Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gnan Manjari Vidyapit, Moa. In class 6, again, welcomes back. We discussed yesterday about the measuring angles using a protractor. एंड प्रोट्रैक्टर से हमने एंगल मेजर करने का एक वीडियोस देखा और उस वीडियोस से हमें ये पता चला कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिफरेंट एंगल्स with the using of outer circle or inner circle of the protractor. So you can also use this, again you read this SB 13 page. So today we are going on to the another portions, and we have to also using the say true or false. Here one exercise from the NCERT that is displayed in your screen, that is exercise 5.4 page number 97. Say true or false, the measure of an acute angle इज लेस देन 90 डिग्री। एक्यूट एंगल का मेजरमेंट है वो 90 डिग्री से कम है। सही है? यस, ट्रू। अब इसके लिए आपको मैंने कल भी बोला था कि SB 12 में जो 6 मैंने फिगर आपको ड्रॉ करने के लिए बोली थी होमवर्क में भी, तो उसी चीज पे आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि द मेजर ऑफ एन एक्यूट एंगल इज लेस देन 90 डिग्री, मतलब ऑलवेज इज कंसिडर दैट 90 डिग्री से कम वाला वो एक्यूट एंगल्स हो सकता है। दैट इज ट्रू। द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि 90 डिग्री, द मेजर ऑफ एन ऑब्ट्यूस एंगल इज ग्रेटर देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री नहीं होना चाहिए। तो ये 90 डिग्री वाला जो आपके पास है वो फॉल्स रहेगा। मतलब आपको सभी का रूल याद रह जाना चाहिए कि एक्यूट एंगल है तो वो 0 से 90 के बीच में ही एंगल होंगे। ऑब्ट्यूस एंगल है तो 90 एंड 180 डिग्री के बीच में ही हो। रिफ्लेक्स एंगल है तो मोर देन 180 डिग्री ही हो। तो आप देख सकते हो कि द रिफ्लेक्स एंगल इज मोर देन 180 डिग्री, मतलब ग्रेटर देन 180 डिग्री है। यस, दैट इज ट्रू। द मेजर ऑफ वन कंप्लीट रिवोल्यूशन 360 डिग्री, यस, ट्रू। वैसे एंगल ए 53, एंगल बी 35, देन एंगल ए इज less than is greater than angle B. एंगल A is less than greater than is angle B, तो obviously एंगल A है वो बड़ा है। so that is true, क्योंकि 53 है वो 35 से बड़ा है। so that way we are going here. Next portion is fill in the blanks with acute, obtuse, right or straight. So that all are the figures. You can also write down this all the fill in the blanks of the NCERT exercise 5.4 from this video. An acute, an angle whose measure is less than that of a right angle. Right angle से कम हो वो acute angle ही होगा। An angle whose measure is greater than that of a right angle is, मतलब वो तो obtuse ही होगा, क्योंकि if the angle is less than 180 degree, that is obviously considered as obtuse. An angle whose measured is the sum of the measured of two right angle. Two right angle का measurement होता है 180 डिग्री। 180 का मतलब होता है straight angle, जो आपके फिगर में भी चौथा फिगर हमने देखा था वो straight angle का। When the sum of the measures of two angles is that of a right angle, then each one of them is acute angle. तो उसको भी हम acute angle ही बोलेंगे। And when the sum of the measures of two angles is that of a straight angle, and if one of them is acute, then the other should be an obtuse angle. तो ये चीज भी आपके लिए इजी है और ये एक्सरसाइज 5.4 के लिए मैंने आपको बताई। So let us move on to the next point. Okay, so let us move on to the next topic, that is perpendicular lines. Now this perpendicular lines का मतलब क्या होता है, और perpendicular lines, that is your concept time 13th, and it is available in your supplementary book 14, SB 14, page number 65. So perpendicular lines means what? When two lines intersect and the angle between them is right angle. दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट होती हो और हर एक एंगल्स जो बनता है वो राइट एंगल बनना चाहिए। राइट एंगल का मतलब होता है 90 डिग्री का। then it should be said to be a perpendicular if line
we are considered here the some examples also. So first of all, here given the some examples. What is the common among the pairs of line marked in the following images? आप देख सकते हो कि हर एक जगह पे लाइन है वो इंटरसेक्ट हो रही है. आप देख सकते हो कि एक लाइन दूसरी लाइन से इंटरसेक्ट है, उसमें से फर्स्ट इमेज ऐसी है जिसमें दो लाइन एक दूसरे के साथ इंटरसेक्ट हो रही है. So all these lines intersect each other and the angle formed between these two lines is 90 डिग्री. आप देख सकते हो कि हर एक एंगल जहाँ पे इंटरसेक्ट होते हैं वो सेंटर पॉइंट पे आप देखिएगा तो सभी जगह पे एंगल है वो कितने का कंसीडर हो रहा है यहाँ पे 90 डिग्री का. आप देख सकते हो लाइक दैट वे. When two lines intersect and the angle between them is a right angle, then the line are said to be perpendicular. आप देख सकते हो कि टू लाइन इंटरसेक्ट कर रही है, एक लाइन ए बी है और एक सी डी है एंड ये दूसरे के बीच में आप राइट आप रेड मार्क्स आप देख रहे हो, वहां पे जो बन रहा है एंगल वो कितना होना चाहिए? राइट एंगल होना चाहिए. राइट एंगल मतलब 90 डिग्री का यदि बनता है तब हम कह सकते हैं कि दैट बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस. समझ में आ गया? दैट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस थिंग्स. अब आप देख सकते हो कि line AB is perpendicular to line DC. We write it as AB. line AB is perpendicular. आप देखो तो उल्टा T जो हमारा अल्फाबेट्स होता है ना, अल्फाबेट्स ABCD, उसमें उल्टा T जैसा उसका शेप हम उसको जब लिखते हैं लाइन AB इज परपेंडिकुलर, वो सिंबल है परपेंडिकुलर का, तो उल्टा T लिखने से हम उसको समझ जाते हैं मैथमेटिकल भाषा में उसको सिंबॉलिकली कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है, लाइक दैट वे. तो ए बी इज परपेंडिकुलर विथ डी सी, क्योंकि आप देख सकते हो कि बीच में 90 डिग्री का एंगल राइट एंगल बन रहा है. क्योंकि आप देख सकते हो और क्या क्या चीज इसमें एक जैसी है. तो वंस ए लाइन ए बी डिवाइड्स लाइन सेगमेंट डी सी into two equal parts and makes a right angle, then line AB is called perpendicular bisector of DC. AB है वो perpendicular bisector of DC बोला जाता है क्योंकि दोनों का डिस्टेंस कितना है 2 मीटर 2 मीटर्स का आप देख सकते हो. सो AB डिवाइड्स DC इक्वली, DC को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड्स करती है और AB इज परपेंडिकुलर टू DC. जब ऐसी कोई पोजीशन आए तब जो लाइन उसको डिवाइड्स करती हो वो इक्वल ही होती है. दैट इज कॉल्ड द मेन प्रॉपर्टीज ऑफ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट वी कवर्ड फर्स्ट हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, okay, so let us move on to the classification of quadrilateral, that is a concept time 15th year, and these all are the concept times quadrilaterals. How can we classify into this all the quadrilateral? Just we have to check it out. This is a one kind of quadrilateral. Classification of quadrilaterals we have using a quadrilateral is a closed polygon formed by four line segments. एक क्लोज पॉलीगॉन है क्वाड्रिलेटरल. मतलब क्या होता है? इट इज ए वन काइंड ऑफ क्लोज पॉलीगॉन फाउंड बाय फोर लाइन सेगमेंट. चार लाइन सेगमेंट से बना हुआ एक क्लोज्ड पॉलीगॉन को हम क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं. एंड इज क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इट्स साइड्स एंड एंगल्स. आपको पता है कि उसकी चार साइड्स होती है, दो डायगोनल्स होते हैं और चार एंगल्स होते हैं. तो लेट अस मूव ऑन इट. यहाँ पे देर आर क्वाड्रिलेटरल्स एवरीवेयर अराउंड अस. ये सब एग्जांपल्स है जहाँ पे आपको क्वाड्रिलेटरल्स दिख रहा है. एज यू कैन सी दैट देर आर डिफरेंट टाइप्स. लेट अस go through the properties of each types of quadrilateral. First of all, classification of quadrilateral में first part होता है वो है parallelogram. Now parallelogram, it is a one kind of quadrilateral with its opposite sides parallel and equal. जिसकी opposite side है वो parallel होती है और equal होती है और its opposite angles are also equal. और इसके ऑपोजिट जो एंगल होते हैं वो भी इक्वल होते हैं. ये आपको प्रॉपर्टी में याद रखना है. दिस इज अ कॉन्सेप्ट टाइम 15 गिवन इनटू द पेज नंबर 66. यू कैन आल्सो राइट डाउन दिस पैराग्राफ. उसकी दो कैरेक्टरिस्टिक्स आपको याद रखनी है. ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल
and opposite angles are equal. Opposite sides are equal and opposite angles are equal. दूसरा पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल्स, क्योंकि पैरेललोग्राम टू टाइप्स के होते हैं. It is parallelogram with all the angles measuring 90 degree. Its opposite sides are equal. मतलब all the parallelogram with all the angles that is considered as a 90 degree, and then we have to using the rectangle. So rectangle, how can we set that? So one is rectangle, opposite sides are equal. हम पहले से मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, रेक्टेंगल की मैं बात कर रहा था, पैरेललोग्राम की बात हो गई. पैरेललोग्राम में हमने सीखा opposite sides are equal and opposite angles are equal, and while rectangle opposite sides are equal, all angles are 90 degree. रेक्टेंगल के सभी एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. फिर आ रहा है रोम्बस. रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल. आप देख सकते हो कि चारों चार साइड्स उसकी इक्वल होती है, एंड ऑल एंगल्स आर ऑल्सो भी इक्वल. उसके सभी एंगल्स भी इक्वल ही होते हैं. तो ये जो मैं चीज बता रहा हूं वो चीज आपको याद रखनी है. बाद में आता है पैरेललोग्राम में रेक्टेंगल, रोम्बस, रोम्बस के बाद स्क्वायर. स्क्वायर की बात करें तो ऑल साइड्स आर इक्वल, सभी साइड्स इक्वल होती है लाइक रोम्बस, एंड ऑल एंगल्स आर इक्वल टू 90 डिग्री. अब यहाँ पे देखो कि यहाँ पे स्क्वायर और रोम्बस में क्या डिफरेंस है. उसकी भी चारों साइड इक्वल है और स्क्वायर की भी चारों साइड इक्वल है. रोम्बस में चारों एंगल्स के मेजरमेंट इक्वल होती है और स्क्वायर में सभी एंगल्स 90 डिग्री के ही होते हैं, इक्वल. एंड दिस ऑल आर द स्क्वायर्स. वी हैव टू कवर द ट्रेपेजियम, and this is the another types of the quadrilateral, and it is considered as a quadrilateral with one pair of the sides parallel, जिसमें दो sides parallel होती है. also its sides are not equal, मतलब ये sides parallel होने के बावजूद भी वो equal नहीं होती. इसको हम बोलते हैं ट्रेपेजियम. मतलब one pair of the sides is parallel, दो में से एक पैर उसकी पैरेलल होती है. साइड्स आर नॉट इक्वल, सभी साइड्स इक्वल नहीं होती है, उसको हम ट्रेपेजियम बोलते हैं. और ट्रेपेजियम में भी लास्ट वन आइसोस्केल ट्रेपेजियम. आइसोस्केल ट्रेपेजियम्स का मतलब होता है वन पेयर ऑफ साइड्स इज पैरेलल, वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल. आप देख सकते हैं कि ऑपोजिट साइड इक्वल हो सकती है इसमें, इसको बोलते हैं हम आइसोस्केल ट्रेपेजियम. तो ये जो टाइप्स थे वो क्वाड्रिलेटरल के सभी टाइप्स है. क्वाड्रिलेटरल में पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रेक्टेंगल, रोम्बस, आइसोस्केल ट्रेपेजियम, स्क्वायर्स, ईच एंड एवरीथिंग. सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पोर्शन. और एक चीज आपको बता दूं कि यहाँ पे कंस्ट्रक्टिंग क्वाड्रिलेटरल्स, यदि हमें क्वाड्रिलेटरल्स को कंस्ट्रक्ट करना है यूजिंग द सेट स्क्वायर. सेट स्क्वायर इज अ टूल. हमने सीख लिया है कि हमारे जियोमेट्री बॉक्स में ये दो टाइप्स के टूल्स होते हैं, उससे हम क्वाड्रिलेटरल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं, लेट अस सी. ये दो आपको दिख रहा है ना, ब्लू एंड येलो, दैट इज अ सेट स्क्वायर, इसको बोलते हैं हम. हियर गिवन दैट सिट इन ग्रुप्स ऑफ 4 फॉर्मिंग क्वाड्रिलेटरल, यू विल नीड 4 सेट्स ऑफ सेट स्क्वायर फ्रॉम योर जियोमेट्री बॉक्स. आपके जियोमेट्री बॉक्स में ये पूरी एक एक्टिविटी यहाँ पे बताई गई है. And squares ready. Set squares are used to draw parallel lines, angles, lengths, etc. ये किसके लिए यूज होता है, पैरेलल लाइंस ड्रॉ करने के लिए, एंगल्स ड्रॉ करने के लिए, लेंथ फाइंड करने के लिए हम यूज करते हैं. ये सेट स्क्वायर विथ इक्वल साइड हैज एंगल. ये जो इक्वल साइड वाला एक आपके ज्योमेट्री बॉक्स में अवेलेबल है प्लास्टिक का वो टूल, जिसको हम सेट स्क्वायर बोलते हैं. यदि इक्वल साइड वाला है वो, उससे हम कौन से एंगल मेजर कर सकते हैं, 90 डिग्री मेजर कर सकते हैं, 45 डिग्री मेजर कर सकते हैं, एंड 45. मतलब एक साइड से 90 और दो साइड से 45 डिग्री हम मेजर कर सकते हैं, ये ब्लू वाला से. अब येलो वाला जो सेट स्क्वायर है उससे हम अनइक्वल साइड से हैज एंगल दैट मेजर 90 डिग्री, उससे 90 डिग्री मेजर कर सकते हैं, दूसरी साइड से 30 डिग्री मेजर कर सकते हैं और तीसरी साइड से हम 60 डिग्री मेजर कर सकते हैं. तो ये चीज आपको याद रखना है, लाइक दैट वे.
क्रिएट ए रेक्टेंगुलर यूजिंग सेट स्क्वायर, दोनों सेट स्क्वायर को यदि दो पेयर है आपके पास तो दोनों को जोड़ दे तो एक रेक्टेंगुलर शेप बन जाता है, like that way. So opposite side of a rectangle are equal, so we can create a rectangle by joining two unequal sides set square. So name of the quadrilaterals, यहाँ पे आपको जब अब प्रैक्टिस क्वेश्चंस में हम यूज करेंगे वहां पे आपको ये दिखाना है। तो नेम ऑफ द क्वाड्रिलेटरल्स का नाम क्या है? रेक्टेंगल। ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, opposite side are equal, what is that say? तो opposite side are parallel, yes. Opposite side are equal, yes. All sides are equal, no. Diagonals are equal, yes. Opposite angles are equal, yes. All angles are equal, yes. तो ये चीज जो है वो प्रॉपर्टीज में आपको लिखनी है। वही आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 6 भी है, जिसमें आपको शेप दिया गया है, पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल, स्क्वायर, रोम्बस, ट्रेपेजियम, ये सब चीज, और उसी के ऊपर से आपको उसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल और नॉट आपको बताना है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन दैट नेक्स्ट पॉइंट। So this is your practice question number 6 and 6.1. For each quadrilateral, write yes, maybe for the properties given. आपको ऐसा लिखना है, या either you have to write yes or no for the properties given. पैरेललोग्राम, पहला आपका पोर्शन पैरेललोग्राम से कंसीडर्ड होता है, रेक्टेंगल से कंसीडर्ड होता है, स्क्वायर से कंसीडर होता है, रोम्बस से होता है, ट्रेपेजियम से होता है। ऑल दिस थिंग्स इज गिवन इनटू दिस टेबल। सो आपको ये पूरा टेबल है वो फिलअप करना है, अपनी बुक में ही फिलअप करना है, और वही आज का होमवर्क आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 रहेगा। ओके, सो एंड ऑफ दिस सेशंस वी हैव कंक्लूड हियर ऑल द पॉइंट्स ऑफ फर्स्ट यूनिट टेस्ट। जो हमारी टेस्ट आ रही है अभी, हमारी सप्लीमेंट्री असेसमेंट, समेटिव असेसमेंट टेस्ट, हमारी SA1 एग्जामिनेशन आ रही है 40 मार्क्स की। वहाँ तक हमने आपको सिलेबस दिया था, दैट इज अप टू द 67 पेज नंबर SB16 में प्रैक्टिस क्वेश्चन 6.1 से कवर करना है। तो ये पूरा आपको सॉल्यूशंस इस टेबल में दिया है, आप अच्छी तरह से पेंसिल से इस पूरे आपकी बुक्स में लिख के वही फोटोग्राफ्स मुझे सेंड करें। बट वॉच केयरफुली, वाई द ऑपोजिट साइड आर पैरेलल। आप अपना रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल ड्रॉ करके लिखेंगे। स्क्वायर पैरेललोग्राम आप देखेंगे कि पैरेललोग्राम पहली पोजीशन पे है और आपने लिख दिया रेक्टेंगल की सब प्रॉपर्टी, तो ये गलत होगा। तो देख के अच्छी तरह से आप उसको मेंटेन करना। ओके, सो आई होप सो दैट यू अंडरस्टूड each and everything, and we conclude our first term syllabus over here. Whatever the things I ask up to this practice question 6.1 तक में सभी चीज मैंने जो चीज यहाँ पे चलाई है वो सभी चीज मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। So without wasting the time, you have to cover all these things. So today's homework is practice question 6.1. Thank you very much for being with us. We will meet very soon into the next lecture. Thank you.